Myself B.S. Mandavara, Associate Professor, Department of Mathematics, Miracles College, Udaipur. As we have already discussed earlier that what is a bounded sequence, or say upper bounds, lower bounds. Sequence bounded above means all the terms of a sequence is less than equal to certain रियल नंबर से के, यानी कि अनुक्रम के सारे पद x1, x2, x3 सो ऑन किसी वास्तविक संख्या k से लेस देन इक्वल टू है, यानी उन सारी टर्म्स k से छोटी है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड एबोव बाई k। सिमिलरली सीक्वेंस जो है नीचे की ओर परिबद्ध है या बाउंडेड बिलो है यदि वह यानी कि उसकी सारी टर्म किसी वास्तविक संख्या से ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि किसी वास्तविक संख्या से सारी टर्म्स बड़ी है। तो इस तरह से सीक्वेंस जो है क्या कहलाएगी, बाउंडेड below by certain number, certain real number, and sequence which is bounded below as well as bounded above is known as a bounded sequence. For example, 1 by n sequence is what? 1 by n. 1 by n, xn equal to 1 by n means first term when you put n equal to 1, x1 is 1, x2 1 by 2, x3 1 by 3. Then ask me 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. These all terms are less than certain number. What is that number? That number is 1. 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 4, 5 and so on. All terms of the sequence is less than equal to 1. It is also less than equal to 2, 3 by 2, 3, 4, 2.5, 3.5, so on. So all terms are less than equal to 1 and more values of 1. More values of 1. Similarly, next example, -1 का whole n means first term is x1 is -1 की power 1 -1, x2 is 1, x3 is -1 का whole cube यानी -1. All terms of sequence is either -1 or 1, यानी this is a finite sequence. This is a finite sequence, repeating sequence in which there are only two values, -1 and 1. So all terms of the sequence is greater than or equal to -1, less than or equal to 1. So it is a bounded sequence between -1 and 1. Next example, sin pi x by 2. Sin n pi by 2. xn equal to sin n pi by 2. When you put n equal to 1, we get sin pi by 2. When you put n equal to 2, so sin 2 pi by 2 means sin pi. Sin pi by 2, sin pi, sin 3 pi by 2, so on. What is the value of sin pi by 2? 1. Sin pi, 0. Sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2, -1. Means we know that values of sin always lies between -1 and 1. What is the value? Whatever be the value of n, therefore all the terms of the sequence यानी अनुक्रम के सारे पद
जो है कौन से दो नंबर के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है. दिस मीन्स दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, xn इक्वल टू n स्क्वायर. xn इक्वल टू n स्क्वायर, x1 1 स्क्वायर, x2 2 स्क्वायर, x3 3 स्क्वायर, means 1 4 9. As the value of n increases, the value of term increases. x1 1, x2 4, x3 9. This is a increasing sequence. When you take the more values of n, you get more values of xn. Means when you take n tends to infinity, xn tends to infinity. This means lowest term, lowest value is 1 and largest value tends to infinite. This means this sequence is bounded below by 1. नीचे की ओर परिबद्ध किससे है, 1 से, but it is not bounded above because it goes to infinity. Because it goes to infinity. Now then, these are the examples of bounded sequence as well as bounded below sequence but not bounded above. Similarly, minus n का whole n means xn equal to minus n का whole n. When you put n equal to 1, minus 1 का whole 1, minus 1. When you put n equal to 2, minus 2 का whole square, this is 4. When you put n equal to minus 3, minus 3 का whole, n equal to 3, minus 3 का whole cube, minus 27. Yeah. So this means this sequence, when n is even number, goes to plus infinity. When n is odd number, विषम संख्या n, then it goes to minus infinity. Okay, this means this sequence is neither bounded below nor bounded above. Neither bounded below nor bounded above. ना तो ऊपर की ओर परिबद्ध है, ना यह नीचे की ओर परिबद्ध है. तो ये दिस इज अ अनबाउंडेड सीक्वेंस, अपरिबद्ध अनुक्रम. तो ऐसा अनुक्रम जो ना तो बाउंडेड बिलो है ना ही बाउंडेड अबोव है, that is the unbounded sequence. Now we are going to very important term in a sequence, that is supremum and infimum of a sequence. अनुक्रम का उच्चक तथा निम्नक. The best example to understand supremum and infimum of a sequence. What is supremum? उच्चक क्या है? उच्चक जो है आपका definition, the minimum value of the upper bounds of a bounded sequence is called the supremum or least upper bound. क्या मतलब? परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड्स, देन वी हैव to go through least value of upper bounds, and that least value is known as least upper bound or say supremum. Best example, xn equal to 1 by n. xn is 1 by n. What is x1? 1. What is x2? 1 by 2. What is x3? 1 by 3. Therefore upper bounds, first bounded above by 1, 1.5, 2,
2.5, 3, 3.5, 4, and the least value of these upper bounds. All values of sequence, all values of terms of sequence are less than equal to 1, also 1.5. All the values of more than 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.15, 2.35, 2.45, so on. So all values are less than these numbers. And what is the lowest value of these all values? Yani 1. Means 1 is known as supremum of this sequence. 1 is known as supremum of this sequence. Therefore, list of all upper bounds. लिस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान. ऊपरी परिबंध क्या क्या बताया मैंने? 1 बताया, 1.5 बताया, 2 बताया, 2.5, 2.3, 2.7, 3, 3.5, 4, 5, 6. इनमें सबसे न्यूनतम मान क्या है? 1. ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका? उच्चक. ये आपका उच्चक कहलाएगा. तो समझ में आ गया? अपर बाउंड समझ में आ गया, ऊपरी परिबंध समझ में आया कि सारी टर्म किसी रियल नंबर से, सीक्वेंस की सारी टर्म किसी रियल नंबर से लेस देन और इक्वल टू है, तो वह वैल्यू जिससे लेस देन और इक्वल टू है वह वैल्यू क्या कहलाएगी? ऊपरी परिबंध. और ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, ऊपरी परिबंध केवल एक ही नहीं होगा, बहुत सारी वैल्यूज होगी. तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान जो है वो क्या कहलाएगा? आपका उच्चक कहलाएगा. ठीक है. इसी तरह निम्नक जस्ट ऑपोजिट. जितने भी लोअर बाउंड्स है, यानी जिनसे लोअर बाउंड्स मीन्स all the terms are greater than equal to that number and that number is called lower bound. तो lower bound से सारी टर्म्स जो है वो ग्रेटर होती है या इक्वल टू होती है. तो और उस लोअर बाउंड में जितने भी लोअर बाउंड्स है उनमें मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होगी डेट इज अ निम्नक, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. यानी जितने भी लोअर बाउंड्स है उनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोअर बाउंड्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू इज जो है वो निम्नक होगी, और अपर बाउंड्स की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? उच्चक होगी. निम्न परिबंधों का उच्चक, निम्न परिबंधों का महत्तम मान, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या कहलाएगा? GLB. ओके, एनी डाउट? नो डाउट. नाउ तो इस तरह हमने क्या देखा? सुप्रीमम एंड इन्फीमम. सुप्रीमम एंड इन्फीमम. नाउ मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम. जैसा कि डेफिनेशन से ही आइडिया लग रहा है, एक दिष्ट का मतलब दिशा, एक जैसे एक ही दिशा हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अ सीक्वेंस डेफिनेशन व्हाट? इफ अ सीक्वेंस एक्शन इज आइदर मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ऊपर की ओर एरो, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो अपन ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? ये जो सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी यह सीक्वेंस की जो है या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान हो. ठीक है. तो एक्शन जो होगा वो क्या होगा? एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है. ठीक है. जैसे 1/n, एक्शन इक्वल टू 1/n, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड वैल्यू 1/2, थर्ड वैल्यू 1/3, 1/4, 1/5. तो वैल्यू जो है क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है. ठीक है. कहीं पे भी अप डाउन्स नहीं है, डिक्रीजिंग. ठीक है. एक दिष्ट ह्रासमान का घटते हुए, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? मोनोटोनिक सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में हम आगे बढ़े, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए. सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, अपर बाउंड्स क्या है, लोअर बाउंड्स क्या है, एक दिष्ट अनुक्रम क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है. क्योंकि आगे जब थ्योरम्स जो है, सारी जो थ्योरम्स है आगे जो अपन और एडवांस पार्ट जो पढ़ेंगे, उनमें इन सार डेट हैव इम्पोर्टेंट रोल इन डेट थ्योरम्स. एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम, उच्चक और निम्नक का तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उन थ्योरम्स में. इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. एक बार और बता देता हूँ. उच्चक की सूरत है जो भी अपर बाउंड से ऊपरी परिबंध है उनका न्यूनतम मान, और निम्नक क्या है? जितने भी आपके निम्न परिबंध हैं
उसका उच्चतम मान, अधिकतम मान, डेट इज अ निम्नक। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।